Everyone and welcome back to the new video of this channel. So in this video we will be solving a problem which is find the closest palindrome LeetCode 564 problem. It is marked as a hard problem and I will say it's a hard problem to understand because it is not easy and it's a very tricky problem actually. So let's see the problem schedule. So problem is saying that we have given a string n representing an integer, return the closest integer, not including itself, which is a palindrome. Palindrome is it means palindrome is first and last digit should be same, then again first and last digit should be same, then again first and last digit should be same. It means the first half of the string and the reverse of the first half of the string will remain same. So if there is a tie, then we have to return the smaller one. The closest is the defined as the absolute difference of minimized between two integers. Okay. So let's see this example. So if we have a integer 123, so we have the condition like the we have to find the closest number, closest string. I will say if it's a number, if we are considering as a number, if it means if we have a number 123, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना है? It means we have to find out the palindrome number, palindromic number, and that number should be the minimum number. So that minimum number or maximum number, but we can say the absolute difference between these two numbers should be minimum. It means like if we have a number n equals to 123, so इसके closest number कौन सा है? Just इसके बाद वाला हो सकता है या just इसके पहले वाला number हो सकता है. ठीक है, closest number कौन सा आ रहा है जो कि palindrome है? 121, and that is my answer. So if we have an example to like n equals to 1, so 1 के closest में कौन है? n equals to 1 है तो 2 भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं. So closest कौन सा लेंगे? 0 and 2 are the closest palindrome, but we return the smallest, which is 0. So 0 will be the answer. So let's see how we'll solve this problem. Like we have an example 123. So 123 है तो मेरे पास यार चॉइसेस हो सकती है कि देख, अगर मैं एंड वाली डिजिट मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है, बस फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग ले लिया, तो मैं इसके क्लोजेस्ट में क्या बना सकता हूँ? 124 भी हो सकता है, 133 भी हो सकता है, 123 भी, 123 तो है ही है, ठीक है. तो वी हैव मल्टीपल केसेस लाइक सी द this thing. Okay, so let me do this where I am. Yeah, so we have multiple cases, so these are the 2 points: get all pairs, turn all digits with less value into their bigger counterpart, and this is the another node. So let's see how things are going. If we have a number 921, so we can subtract, we can add the plus 1 or we can subtract plus 1. If I want to add plus 1, then it will be something like मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इसमें पहले मैं क्या कर रहा हूँ? सब्सट्रैक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो बीच वाले नंबर में, तो ये हो जाएगा 931. ठीक है, अनदर कैन बी 919 because if I subtract 1 here, 1 from here, so it will be 919. If I subtract 1 from here, then it will be 929 because 1 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, ऐसे नहीं ले रहा हूं मैं. अगर ये थर्ड वाला 10 में से 1 घटा रहा हूँ, ठीक है, तो 929 भी एक आंसर हो सकता है. ठीक है, let's see this example so that we can understand properly. You can see 943 121, it's a even length string. even length string, तो मैं क्या करूंगा? फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग देखूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि पैलिंड्रोम है तो सेकंड हाफ ऑफ द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, तो मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द स्ट्रिंग देखूंगा. ठीक है, तो एक एक क्या हो सकता है? 943 तो 349, ये एक पैलिंड्रोमिक हो सकता है. ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? 94, अगर मैं प्लस 1 ऐड कर देता हूँ तो 944449 हो सकता है. अगर मैं इसमें माइनस 1 कर देता हूँ तो ये क्या होगा? 942249 हो सकता है. अगर मैं ये 6 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, मैं 10⁻6 माइनस 1 करता हूँ, तो ये भी एक हो सकता है जो कि पैलिंड्रोमिक है. अगर मैं 10⁻6 प्लस 1 करता हूँ, तो ये भी एक हो सकता है जो कि पैलिंड्रोमिक है. ठीक है, इट मींस दीज ऑल आर क्लोजेस्ट वन, बट आई हैव टू फाउंड द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स. सो लेट वी विल सी अबाउट दिस कि कौन सा आंसर होने वाला है. ठीक है, नाउ वी हैव सम केसेस लाइक अगर मेरे पास 1 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं अगर -1 करूंगा तो मेरे को दोनों में से करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं -1 सिंपल एक में से करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो कि पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो मेरे को दोनों में ही करना पड़ेगा. इट मींस द नंबर, इफ द नंबर इज सेम,
then we have to do -1, then we have to do the -1 if in all the numbers, so it will be something like 0 0. अगर +1 ऐड करता हूँ तो 2 2 हो जाएगा, ठीक है. So we have some cases like first cases on case of is clear, like if we have all nines, like मेरे पास 9 9 9 9 9 9 पड़े हुए हैं, ठीक है. like स्मॉलर एग्जांपल ले लेते हैं, 99 पड़ा हुआ है. 99 के क्लोजेस्ट में कौन पैलिंड्रोमिक होगा? अगर मैं उसमें +2 ऐड करूंगा, then in that case it can be a palindromic string. So if I add +2, then it is valid for all the cases. Like if we have all nines, then if I add +2, that will be the minimum closest one, that will be the closest one, and that will be the palindromic also. So +2 add कर दूंगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा. That is the case. And second case is if we have a single digit number, like we have seen the number n equals to 1. So n equals to 1 में आंसर क्या आया? 0 आया, क्योंकि उसका क्लोजेस्ट वन कौन था? 0 था और 2 था, बट हमें तो मिनिमम वाला लेना है तो 0 लिया. इट मीन्स वी आर टेकिंग n-1 वाला नंबर. So these are the cases. Now let's see the code. Coding part is simple, but understanding is very important. What we are doing is we have a number string n. सो मैं फर्स्टली इसकी लेंथ फाइंड आउट कर रहा हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है. एंड वी आर चेकिंग इफ लेंथ इज 1, इफ लाइक दिस, इफ लेंथ इज 1 तो मैं क्या करूंगा, उस स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट करूंगा. सो स्ट्रिंग टू इंटीजर ऑफ n -1, that will be my answer. And finally I have to return the string, so I have to convert the whole number to the string. So two string function here I am using. So 1 minute. Yeah. So this is the first case. Now I have to find the original string. Original string क्या है मेरे पास? वो हो जाएगा this one, ठीक है. Original string you can read about this function from the Google. Okay. लेस डिजिट, सबसे लीस्ट डिजिट क्या हो सकती है? मैंने यहाँ पे देखा कि हमने क्या किया था, 10⁻6 - 1 किया था. इट मीन्स द लेंथ ऑफ द होल स्ट्रिंग -1, दैट कैन बी अ लीस्ट नंबर दैट वी कैन गेट. ओके. सो लीस्ट नंबर क्या हो सकता है? 10⁻n-1 -1. सो ये हो सकता है कि लीस्ट नंबर, सॉरी वो n-1 0 से स्टार्ट हो रखा है ना, सो दैट्स वाई. सो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. एंड मोर डिजिट, इट मीन्स सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या हो सकता है? 10⁻n+1. हियर वी हैव सीन दिस 10⁻6+1. सो दीज आर टू केसेस, ठीक है. इतने देख लिए मैंने. अब मैं क्या करूंगा, हाफ स्ट्रिंग को मैंने जनरेट करूंगा, लाइक मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हाफ स्ट्रिंग को जनरेट किया था. सो लॉन्ग लॉन्ग हाफ वैल्यू क्या हो जाएगा? ये फंक्शन है, ठीक है. एन डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ 0 to n+1/2, ठीक है. ये हाफ स्ट्रिंग दे देगा हाफ वैल्यू, लाइक 123 321. सो 123 इज द हाफ वैल्यू, ठीक है. हाफ वैल्यू यहाँ से मिलेगी. अब मेरे को सेम वाली स्ट्रिंग निकालनी है. सेम वाली स्ट्रिंग कैसे निकलेगी? अगर वो इवन लेंथ का हुआ. इवन लेंथ में मैंने क्या किया, बिल्ड पैलिंड्रोमिक फंक्शन बनाया. बिल्ड पैलिंड्रोमिक फंक्शन को देख लेते हैं पहले. मैंने बिल्ड पैलिंड्रोमिक फंक्शन में हाफ पास किया और इवन पास किया, क्योंकि वो इवन होना चाहिए. स्ट्रिंग हाफ स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, टू स्ट्रिंग ऑफ हाफ, ठीक है. जो मेरे पास हाफ इंटीजर था उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, ठीक है, टू इंटीजर फंक्शन का यूज करके. देन उसका रिवर्स हाफ भी फाइंड आउट किया. रिवर्स हाफ भी सेम रहेगा, लाइक 123 तो 321, रिवर्स हाफ भी सेम रहेगा, ठीक है. फाइंड आउट कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है. यहाँ पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया बाय दिस कंडीशन, ठीक है. नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द स्मॉलर वन. स्मॉलर वन कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बोला था -1 करेंगे या +1 करेंगे. -1 करके मैंने स्मॉलर वन फाइंड किया, और बिगर वन क्या हो सकता है? +1 करके मैंने फाइंड किया, ठीक है. नाउ वी आर कलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, लाइक वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग ऑफ कैंडिडेट्स क्या हो सकते हैं? लेस डिजिट वाला हो सकता है, सबसे लीस्ट डिजिट, सबसे हाईएस्ट डिजिट, मोर डिजिट वाला हो सकता है. हाफ वैल्यू भी एक हाफ वैल्यू नहीं होगा, सेम वाला होगा. हाफ वैल्यू तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फंक्शन में, ठीक है. सो सेम वाला हो सकता है, स्मॉलर वाला हो सकता है, बिगर वाला हो सकता है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वन. सो मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्टली आई एम सॉर्टिंग इट. सो सॉर्ट कर दिया जिससे कि सारी वैल्यू सॉर्ट हो जाए, ठीक है. लाइक दिस वी आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज. सो पहले हम इनको सॉर्ट करेंगे. सॉर्ट कर दिया. नाउ वी आर फाइंडिंग आउट द क्लोजेस्ट वन. सो क्लोजेस्ट वन को फाइंड करने के लिए मैं क्या करा, मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करूंगा. इफ कैंडिडेट इज नॉट इक्वल टू आइदर, वी हैव गिवन दिस. इफ विच इज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूडिंग इटसेल्फ, सो दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग दिस कंडीशन. इफ क्लोजेस्ट इज नॉट इक्वल टू -1 and absolute difference of this
is less than this is equals to this, and this is less than this. You can see this condition. So in that case, I have to do this closest equals to candidate, and finally I will return it, and using to string function, because I have this is a closest is an integer and I have to convert it to in string form. So this is a simple case. जस्ट क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, एक लेस डिजिट फाइंड कर रहे हैं, सबसे लीस्ट डिजिट क्या हो सकती है और सबसे हाईएस्ट डिजिट क्या हो सकती है, एंड हाफ वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि मेरे पास कोई नंबर है, उसका हाफ क्या होगा, ठीक है। हाफ निकाल लिया, हाफ निकालने के बाद मैंने एक फंक्शन उगाया बिल्ड पैलिंड्रोमिक, जो कि हाफ और रिवर्स हाफ को ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू इवन और ऑड, ठीक है। वो यहाँ पे देख सकते हो कि कंडीशन भी मैंने लगा रखी इवन और ऑड वाली, ठीक है। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि सेम वाली चीजें फाइंड कर रहा हूँ, जैसे मेरे को नंबर बनाना है, यहाँ पे मैंने बनाया था नंबर 943349, ये सेम वाली चीज होगी। ये वाली बिगर वाली चीज होगी 944449, क्योंकि मैंने प्लस वन ऐड किया है। और ये वाली लीस्ट वाली चीज होगी, लीस्ट नहीं कह सकते, स्मॉलर वाली चीज होगी 942249, बिकॉज आई हैव डन अ subtraction here. So after all the steps, I am storing all the numbers in vector form and I am sorting out it. And finally, I am finding out the minimum difference, minimum closest one. So this was the code. And if you find this helpful, then please like, share, and subscribe to the clip.